Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss the solutions of the chapter State Line, exercise number 10.3. Open your NCERT book, exercise 10.3. In previous video, we discussed the solutions of the exercise 10.2. In today's video, we are going to discuss exercise 10.3. बुक निकाल लो बच्चों। एक्सरसाइज 10.3 में क्या करना है, आपको जो है बताया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। सो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन these three forms. Chapter name Straight Line, class 11th, exercise 10.3. Different forms of equations of a straight line. Y is equal to mx plus c. This is the slope intercept form. Second, x upon a plus y upon b is equal to 1. This is the intercept form. And third is the x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. This is the normal form of the equation of the straight line. अब ये आपका है बच्चों ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of the equation of the straight line. Each equation can be written in this form. So you will be given the equation in this form and need to convert the equation in the slope intercept form and normal form. So 10.3 का first question देखो बच्चों. In first question, you have to reduce the following equations into the slope intercept form. Exercise 10.3, question number 1. There are three parts. You have to reduce the given equation in the slope intercept form. There are three parts. मैं एक part discuss कर रहा हूँ. Second part ले लेते हैं इसका. Second part. Given equation is 6x plus 3y. 6x plus 3y minus 5 is equal to 0. Reduce this equation. Reduce this in the slope intercept form. आप इसको slope intercept form में reduce करें and find the slope of the line and the length of y intercept. आपको बताया गया था बच्चों, if there is a line which makes an intercept of c units on y axis, this is y axis. लाइन अगर y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट एंड इफ इट इज गिवन एज c यूनिट्स एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन एज m, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is the length of y intercept. अब आपको बच्चों इक्वेशन गिवन है in the general form and you have to convert that equation, reduce that equation in the slope intercept form. तो क्या करना होगा, slope intercept को आप एनालाइज करो. लेफ्ट हैंड साइड में there is a term containing y only. तो क्या करना है, इक्वेशन से from this equation आप क्या करो, term containing y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो and take all other terms at the right hand side, तो minus 6x plus 5. इसके बाद बच्चों y का जो कोफिशिएंट है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज 1. तो आपको यहां क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ y को 1 बना देना है. तो कैसे करेंगे आप, 3 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3. नाउ कंपेयर दिस विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म.
नाउ इट इज इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना आ गया, m इज इक्वल टू आ गया -2 एंड स्लोप ऑफ सॉरी y इंटरसेप्ट कम्स आउट टू बी 5/3। तो बच्चों अगर आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में दिया गया हो तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट दैट इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका मैंने स्टेप्स बता दिया। एंड फाइनली आपको बताना होगा स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन कम्स आउट टू बी -2 एंड लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कम्स आउट टू बी 5/3। ये मैंने एक पार्ट डिस्कस किया है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स को आपको खुद ट्राई करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11th NCERT। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, रीड दैट क्वेश्चन। You have to convert the given equation, reduce the given equation in the intercept form and find the x-intercept and y-intercept of the given line। आपको मैंने बताया था बच्चों, if there is a line, ये y-axis है and this is x-axis, if there is a line which cuts off x-intercept as a unit, x-intercept क्या होता है, वो गिवन लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगी उसके जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को जहां कहीं भी इंटरसेप्ट करती है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट ए यूनिट्स, वाई इंटरसेप्ट बी यूनिट्स अगर आपको दिया गया हो तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। तो बच्चों हमें एक इक्वेशन, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, गिवन इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट, सॉरी इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो क्या करना होता है, गिवन इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट टर्म है, टेक द कांस्टेंट टर्म एट द राइट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप इज टेक द कांस्टेंट टर्म एट द राइट हैंड साइड। क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके बाद जो भी राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है इससे आप डिवाइड करो बोथ साइड्स को, तो क्या मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट 3x upon 12 plus 2y upon 12 is equal to 1. Simplify this, it comes out to be, ये आप देखो 3 को इधर लिख दो 12 upon 3, तो ये आ जाएगा x upon 4 plus y upon 6 is equal to 1। देखो बच्चों ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया गिवन इक्वेशन एंड कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ ए x इंटरसेप्ट a is equal to 4 यूनिट्स and length of y intercept b is equal to 6 units। आपको x intercept और y intercept की वैल्यूज मिल गई। ये था बच्चों how to reduce the given equation in the intercept form। मैंने एक पार्ट डिस्कस कर दिया, रिमेनिंग 2 पार्ट्स you have to attempt। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट, नॉर्मल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है एक एग्जाम में। क्या गिवन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 NCERT क्लास 11। इसमें क्या गिवन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको क्या बताया गया है, इफ देयर इज अ लाइन, देखो ये y एक्सिस और x एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और एक लाइन है बच्चों। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो
and this length of perpendicular is p units. ये p units given है, ON is p units, ये given है। और ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन पर, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल अल्फा है, then equation of this line comes out to be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, और हम इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसका नॉर्मल फॉर्म की स्पेशलिटीज क्या है? राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, p इज ऑलवेज पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में जो x और y का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है cos अल्फा, y का कोफिशिएंट है sin अल्फा, दोनों को स्क्वायर करो, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, प्लस करो इनको, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये दो बातें अगर किसी इक्वेशन के लिए ट्रू हैं, देन वी से दैट इक्वेशन इज इन द नॉर्मल फॉर्म। राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, तभी हम उस इक्वेशन को, उस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। तो अब यहां पर क्या कहा गया है? ये जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। तो क्या ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है? कैसे चेक करोगे? चेक करते हैं। वैसे तो आपको मैं 2 स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को यूज करेंगे आप, तो वो गिवन इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या है वो स्टेप? ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, टेक दिस कांस्टेंट क्वांटिटी एट द राइट हैंड साइड, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या आएगा? x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। कांस्टेंट क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाइए, एंड ये हमने कर दिया, ये काम -8 हो गया। और मेक दिस पॉजिटिव, मेक इट पॉजिटिव इफ इट इज नॉट। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको पॉजिटिव पहले बना दो आप। कैसे बनाओगे आप इसको? -8 है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। क्या करना होगा? बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया प्लस √3y हो गया इज इक्वल टू 8 हो गया। अब क्या करना होता है? अब अगर मैं x के कोफिशिएंट को a से डिनोट करता हूं, y के कोफिशिएंट को b से डिनोट करता हूं, तो √a² प्लस b² से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड्स को। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x को मैंने a से डिनोट किया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ y को मैंने b से डिनोट किया है, तो √a² प्लस b² एक क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी से आप बोथ साइड्स को डिवाइड कर दो। तो क्या करना है? divide both sides of this equation by under root x का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है √3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस तो आएगा 1 + 3 दैट इज 2। आप 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा इक्वेशन। अब आप चेक करो, ये इक्वेशन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। राइट हैंड साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और लेफ्ट हैंड साइड में x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करो। x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, प्लस करो इनको, 1/4 प्लस 3/4 क्या आएगा? 1 आएगा। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो ये क्या है? इट इज इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो इसको नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करो। नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा मिलेगा -1/2, sin अल्फा क्या मिलेगा? √3/2। अब बच्चों p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू 4। p क्या था? ओरिजिन से अगर 0 0 से अगर मैं उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज p यूनिट्स, तो p इज इक्वल टू क्या गया है? 4 यूनिट्स। मतलब ये है, अगर गिवन इक्वेशन को
नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उस लाइन पर तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता किया जा सकता है, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी पता किया जा सकता है। अब बच्चों कॉस अल्फा माइनस में है और साइन अल्फा पॉजिटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है कि कॉस नेगेटिव हो और साइन पॉजिटिव हो? क्वाड्रेंट बताओ, कॉस माइनस में और साइन प्लस में ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। तो cos माइनस में और sin प्लस में कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा क्या होगा जो इनको सेटिस्फाई करेगा? 180 माइनस किसी से भी एंगल निकाल लो बिना साइन के 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करोगे 2π/3। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करो इन द नॉर्मल फॉर्म and find the length of perpendicular drawn from the origin to the given line and also find the angle made by that perpendicular with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. अल्फा और p की वैल्यू बताइए। तो मैंने एक पार्ट इसका सॉल्व किया है, रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बच्चों, एक एक पार्ट मैंने सॉल्व किया है, रिमेनिंग 2 पार्ट्स को आपको सिमिलर तरीके से ट्राई करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, फ्रॉम द लाइन। जब कभी भी हम डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन की बात करेंगे तो इट मींस परपेंडिकुलर। गिवन नहीं है परपेंडिकुलर, अनलेस अंटिल परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन गिवन होगी। अगर डायरेक्शन मुझे नहीं दी गई है then I will try to find the distance, perpendicular distance of that point from the given line. So fourth question, अब बच्चों फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है बच्चों -1, 1 and there is a line का इक्वेशन दिया है इन्होंने 12x + 6 is equal to 5y - 2। और मैंने क्या बताया अभी, अगर मुझे कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है कि इन विच डायरेक्शन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, सो आई विल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो मैं क्या पता करूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करूंगा, परपेंडिकुलर। ये पी एन डिस्टेंस हमें पता करना है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने का तरीका, एक आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बताया गया, यू कैन यूज दैट फार्मूला। और बच्चों कभी कभी ये आता है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एन के कोऑर्डिनेट्स बताओ और एन के कोऑर्डिनेट बताने के बाद ये डिस्टेंस बताओ, पी एन डिस्टेंस बताओ। तो फिर हम लोग एन के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे और हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक सेपरेट क्वेश्चन है, वहां पर आपको मैं ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी तो बच्चों अगर मुझसे पूछा गया है कि एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ या डिस्टेंस बताओ, तो परपेंडिकुलर ये बताना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या है वो फॉर्मूला? रिवाइज करते हैं। अगर एक लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0, अगर ये लाइन का इक्वेशन मुझे जनरल फॉर्म में गिवन है ax + by + c = 0 और एक पॉइंट पता हो, एक पॉइंट पता हो मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 और इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। फार्मूला क्या होता है? लाइन के इक्वेशन में राइट हैंड साइड शुड बी 0। राइट हैंड साइड 0 होने के बाद जो x को x है, रिप्लेस x बाय द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। x की जगह में x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट रखिए, रिप्लेस y बाय द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y1, कांस्टेंट टर्म को एज इट इज अपॉन √(x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है वाई का कोफिशिएंट। टेक द मॉडुलस बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें डिस्टेंस तो पॉजिटिव न्यूमेरिकल और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो डिस्टेंस तो हमारा सिर्फ माइनस में भी अगर आएगा तो हमें उसका मॉडुलस लेना है डिस्टेंस बताने। ओके, तो अब बच्चों फार्मूला तो मैं यूज करना चाहता हूं, मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, जो लाइन का इक्वेशन है दैट इज नॉट गिवन इन दिस फॉर्म, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करो बच्चों तो क्या आएगा, ये 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, जनरल फॉर्म में आ गया। अब आप फार्मूला यूज करो पीएन का, डिस्टेंस पीएन क्या होगा, मैंने बताया था लाइन के इक्वेशन में राइट हैंड साइड को 0 बना दो, उसके बाद इन प्लेस ऑफ x क्या रखना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या आएगा 12 इंटू माइनस 1 माइनस 5, इन प्लेस ऑफ y पुट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 1, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है अपॉन अंडर रूट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, टेक द मॉडुलस, सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आएगा कितना -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25, सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द आंसर, इतने यूनिट्स डिस्टेंस आ जाएगी। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करते हैं उसका मैंने आपको फार्मूला बता दिया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी क्लास 11, क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया बच्चों, find the points on the x-axis, find the points on the x-axis whose distances from the line x by 3 plus y by 4। देखो बच्चों यहां पर क्या दिया गया है, x-axis, y-axis, एक लाइन है, मैंने रफली ड्रॉ किया है, x by 3 plus y by 4 इज इक्वल टू, एक लाइन है और मुझे एक्स एक्सिस पर ऐसे पॉइंट्स पता करना है जिसकी इस गिवन लाइन से जो डिस्टेंसेस हैं वो कितना है 4 यूनिट्स। तो हो सकता है कहीं पर यहां कोई पॉइंट मिल जाए मुझे, डिस्टेंसेस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर पॉइंट्स की बात की गई है, इसका मतलब है यू मे गेट मोर देन वन पॉइंट जिसका इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट्स हो। तो अभी तो मुझे पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, तो मैं एक पॉइंट लेकर चलता हूं, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स की जो x1 और y1 की वैल्यूज हैं कितनी आएंगी उस पर डिपेंड करेगा कितने ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने कहा लेट द पॉइंट इज x1, 0 ऑन x है, हमें पॉइंट्स कहां बताना है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो हमें क्या करना है x कोऑर्डिनेट ही पता करना है, तो वो x कोऑर्डिनेट मैंने x1 से डिनोट कर दिया। लेट p इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस जिसकी डिस्टेंस इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है। लेट p इज सच पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from this given line is equal to 4 units। अब करना क्या है, हमें लाइन का जो इक्वेशन पता है इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, तो 12 एलसीएम लो और यह आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आएगा बच्चों 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्म में लिखा तो ये इक्वेशन आ गया। अब क्या गिवन है, हमें इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स गिवन है, तो हमें फार्मूला पता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो फार्मूला यूज करो Pn इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4 यूनिट। तो Pn होता क्या है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है, x की जगह में x कोऑर्डिनेट, तो 4x1 प्लस y की जगह में y कोऑर्डिनेट, कांस्टेंट एज इट इज अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर
और मॉडुलस दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है 4 यूनिट. सिंप्लीफाई दिस. मॉडुलस ऑफ 4x1 minus 12 अपॉन रूट 16 प्लस 9 रूट 25. रूट 25 क्या आएगा 5 आ जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 यूनिट. अब मैंने आपको बताया हुआ है अगर बच्चों मॉड x इज इक्वल टू अगर 3 है, इफ मॉड x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू क्या होता है, x की जगह में -3 होगा तब भी मॉडुलस ऑफ -3 3 आएगा, और x अगर 3 है तो मॉडुलस ऑफ 3 भी 3 आएगा. तो अगर मॉड x इज इक्वल टू 3 है तो x क्या हो सकता है +-3 हो सकता है. तो यहां पर आप ऐसे याद रखो मॉडुलस हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है प्लस माइनस लगाना होगा. तो ये कॉन्सेप्ट यहां यूज करो. मॉडुलस हटाने वाला हूं 4x1 - 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू +-4. अब क्या करना है, अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करना चाहिए. टेकिंग पॉजिटिव साइन एट द राइट हैंड साइड क्या मिलेगा 4x1 - 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4. सिंप्लीफाई दिस. 4x1 - 12 इज इक्वल टू 20. 4x1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 32. तो x1 क्या आ गया, x1 आ गया 8. अब x1 8 आ गया मतलब कि आपको जो पॉइंट मिला है वो क्या मिल गया 8,0. अच्छा एक बार आपको माइनस साइन लेकर के भी सॉल्व करना चाहिए. माइनस साइन लेकर के सॉल्व करोगे तो x1 की एक वैल्यू और मिल जाएगी. तो इसका मतलब है कि ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको ऑन x एक्सिस जिसकी इस लाइन से गिवन लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 4 यूनिट्स है. तो ये बच्चों डिस्टेंस फार्मूले का ही एक एप्लीकेशन था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन. तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का एक फार्मूला है, आप उस फार्मूले को यूज करना. बट जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस आपको दिए गए होंगे पैरेलल लाइंस के, उनमें क्या कौन से फॉर्म में होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग दैट फार्मूला, मैं वो डिस्कस करने वाला हूं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग 6th क्वेश्चन में. एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6. बच्चों जब दो लाइंस पैरेलल हों तो पैरेलल लाइन के इक्वेशंस में आप देख सकते हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0. मतलब अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके इक्वेशन में इतना पार्ट तो सेम बनाया जा सकता है. आपको बताया गया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे कब, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो बच्चों जब ऐसी सिचुएशन होती है तो दोनों इक्वेशंस में आप कितना पार्ट सेम बना सकते हो, डिवाइड कर देना एक किसी नंबर से, तो ये बिल्कुल ये पार्ट सेम बन जाएगा अगर नहीं गिवन हो तो. मोस्टली तो इक्वेशंस में पैरेलल लाइन के इक्वेशंस में आप देखोगे सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म्स डिफरेंट होते हैं. तो अगर दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में हों और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है और एक प्लेन की लाइंस हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो डिस्टेंस कितनी होगी 0. डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, तो जब हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं पैरेलल लाइंस में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो अब जैसे ये पैरेलल अगर पैरेलल है, अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है वो तो पैरेलल है. पैरेलल अगर है तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला है बच्चों. क्या है फार्मूला, c1 - c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मॉडुलस. ये है बच्चों, नोट करो इस फार्मूला को, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. और जब ये फार्मूला यूज कर रहे होगे तो इक्वेशंस कौन से फॉर्म में होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है. बेस्ड ऑन दिस फार्मूला एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में 6th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y. 15x प्लस 8y minus 34 is equal to 0. Minus 34 is equal to 0 and 15x plus 8y
प्लस 31 इज इक्वल टू 0, प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। और मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देख सकते हो बच्चों बिल्कुल उसी फॉर्म में इक्वेशन है ये, देखो दोनों में पार्ट सेम है, एक C1 हो गया एक C2 हो गया। तो डिस्टेंस, अच्छा आप किसी को सी यहाँ पर फार्मूला में C1 माइनस C2 लिखो या C2 माइनस C1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडुलस ले लेंगे आप तो सेम आ जाना है। तो D इज इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं C2 माइनस C1 लिख लेता हूँ, 31 माइनस और माइनस 34 अपॉन अंडर रूट क्या है भाई, एक स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर एंड मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा भाई 31 प्लस 34 कितना आ जाएगा, ये तो 65 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो 289, रूट निकालो 17, ये आ जाएगा 17। तो क्या आया भाई, ये कितना आया 5 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस आ गया दोनों लाइंस के बीच में, 5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। इसमें बच्चों 18 क्वेश्चंस गिवन है और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं, मैं उनको बड़ा फास्ट डिस्कस कर लेता हूं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7th क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी क्लास 11 और इसका क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y plus 2 is equal to 0 and we have to find equation of the line parallel to this line passing through the point -2, 3, -2, 3। तो जो बच्चे हमें क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और जिस लाइन का इक्वेशन पता करना है दैट इज पैरेलल टू दिस, और our required line passes through this given point 2, -2, 3। तो बच्चों आपको बताया गया था अगर किसी लाइन का इक्वेशन गिवन हो जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला होता है माइनस a अपॉन b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन ऐसे दिया गया है तो इस लाइन का स्लोप होता है माइनस a अपॉन b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो हम इसका स्लोप पता कर सकते हैं m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये आ गया 3/4। और क्या पता है, अवर रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये पैरेलल है -2, 3 है बच्चों, -2, 3 हमें दिया गया है पॉइंट, तो ये पैरेलल लाइन है इसके, और पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। तो जो इस लाइन का स्लोप है वही क्या हो जाएगा, अपनी इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और वो आ जाएगा 3/4। जो हमने इसका पता किया स्लोप वही क्या हो जाएगा, आवर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा। अब हमें अपनी लाइन का स्लोप मिल गया 3/4, जो पॉइंट जिस पॉइंट से अवर लाइन पास करती है वो पता चल गया। तो आपको बच्चों एक फार्मूला बताया गया था, लाइन पर एक पॉइंट पता हो x1 y1, उसका स्लोप पता हो m, तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फार्मूला होता है बच्चों y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिस पर एक पॉइंट पता हो x1 y1 और उसका स्लोप m पता हो, तो ये फार्मूला होता है। यूज करो, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या मिल जाएगा, y माइनस y1, x1 y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ दिस लाइन 3/4 इंटू x माइनस x1। सो सिंप्लीफाई करो, 4 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, x प्लस 2 हो जाएगा तो 3x प्लस 6। अब बच्चों क्या आ गया, ये 3x माइनस 4y
plus 18 is equal to 0. This is the equation of the required line. तो यहां पर बच्चों क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? एक लाइन का इक्वेशन अगर गिवन हो इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, तो हम उसका स्लोप पता कर सकते हैं, माइनस a अपॉन b, स्लोप का फार्मूला याद रखना है। और अगर लाइन दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होता है। तो जो स्लोप इसका था वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का मिल गया स्लोप, और जो लाइन हमें पता करनी थी उस पर एक पॉइंट गिवन था, तो हमने इक्वेशन फार्मूला जो पता है उसको यूज किया और आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया। अब बच्चों नेक्स्ट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.3, एनसीईआरटी क्लास 11। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब बच्चों जो हमें एक लाइन गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और हमारी जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट एज 3 यूनिट्स। हमें जो लाइन पता करनी है उसका जो x इंटरसेप्ट है वो 3 यूनिट्स। मान लो कभी ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमारी जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ये लाइन, और ये जो लाइन है हमारी रिक्वायर्ड, इसका x इंटरसेप्ट कितना है? ये x इंटरसेप्ट है 3 यूनिट्स। हमारी रिक्वायर्ड लाइन x इंटरसेप्ट का मीनिंग मैंने बताया हुआ है कि वो लाइन x एक्सिस को जहां कहीं भी कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है। सो ये हमें गिवन है 3 यूनिट्स। अगर मुझे ये 3 यूनिट पता है तो हमारी लाइन पर एक पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या मिल गया? 3,0। सो इनडायरेक्टली हमें अपनी रिक्वायर्ड लाइन पर एक पॉइंट दे दिया गया है 3,0, पॉइंट दे दिया गया है, और हमारी रिक्वायर्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब इस जिस लाइन के परपेंडिकुलर है अवर रिक्वायर्ड लाइन, उसका इक्वेशन तो पता है, इसका इक्वेशन ये है। हम इसका स्लोप तो पता कर सकते हैं, इसका स्लोप क्या होता है? माइनस किसी लाइन का इक्वेशन अगर ax plus by plus c is equal to 0 फॉर्म में है तो उसका जो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चों ये हमें 1/7 मिल गया। और अगर किसी लाइन का स्लोप m1 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप होता है -1/m1। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या हो गया? -7। हमारी लाइन का स्लोप मिल गया, इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या मिल जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, पता चल गया स्लोप, इंटू m इन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x1 इज 3। सो बच्चों सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू आ गया -7x प्लस 21। तो फाइनली यू गेट द इक्वेशन 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हमको मिल गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी क्लास 11, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मैं बता देता हूं, अगर किसी भी लाइन का, एक लाइन का स्लोप हमारा m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो दो एंगल बनते हैं बच्चों, एक एंगल ये बनेगा तो एक एंगल ये बनेगा। ये मैं अभी अगर बच्चों लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप्स इक्वल होंगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 -1 होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या आएगा? -1। वो तो दो स्पेशल केसेस हैं, वो तुरंत पता चल जाएंगे। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो कोई एंगल बनेगा, दो एंगल बन सकते हैं, एक 90 डिग्री से कम वाला होगा, उसी को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और फिर दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो दो एंगल्स मिलेंगे। पहले हम थीटा को पता करेंगे जो लेस देन 90 वाला है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे आप, m1 माइनस m2 है, माइनस m2,
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन ऑफ द लाइंस गिवन है √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों एक इक्वेशन ये है और x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता है यू कैन ऑलवेज फाइंड क्या पता कर सकते हो आप, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट स्लोप, और स्लोप पता चल जाएगा तो आप क्या पता कर सकते हो, एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ